Assalamu alaikum and good morning students. Hope you all are fine. Students, we are going to start our fifth chapter for next round, and the name of this chapter is Industrialization in the Muslim World. Okay, so first I will tell you what is the meaning of industrialization. Basically, it is defined as a process in which more and more industries are being established in a country, or you can say industrialization is a major role to play in the economic development of underdeveloped countries. Okay, so I'm going to start reading. You people should have pencils in your hand to write the meaning of the difficult words. Okay, industrialization in the Muslim world. Industry is the most important factor in the development of a country as it creates wealth and improves the economy. The countries of the Muslim world have started in this field much later than the West. Two major reasons for this are that the first point is the colonial power did not encourage the industrialization in Asia as it was the source of cheap raw material for their own factories. And the second one is there was not enough high grade iron ore, which is the basis of heavy industry. बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट कि जब मुस्लिम्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो काफ़ी लेट शुरू हुआ। उसकी पहली वजह ये थी कि कॉलोनियल पावर डिड नॉट इनकरेज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एशिया, और सेकंड उसकी वजह ये थी कि हमारे पास इतना हाई ग्रेड आयरन मौजूद था ही नहीं जो किसी भी हैवी इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए उसकी बेसिक्स होती है। ठीक है, until the discovery of oil and gas reservoirs, energy to run the factories was also a problem, as there was very little high-grade coal in this region. However, industry has developed rapidly now, although it is still based mostly on local agricultural or mineral products. Today, apart from Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, Turkey, and Iran, which are fairly ahead in industrializations, other Muslim countries are also beginning to develop their industries. अच्छा, होता क्या था कि जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री को बनाने के लिए कोई भी जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें जो भी गुड्स वगैरह बनते हैं उन सब के लिए ज़ाहिर है एक मशीन चाहिए होती है। उस तरह की मशीन जो जिस टाइप का गुड होगा उस टाइप की मशीन चाहिए होगी। ठीक है, तो होता क्या था कि मुसलमान कंट्रीज़ क्योंकि इतने डेवलप नहीं थे और जो है उनके पास इतने ज़्यादा गुड्स नहीं थे कि वो जो है वो इंडस्ट्रीज़ बना सकें। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों ने जब मुसलमान अपनी तादाद में बढ़ना शुरू हुए और मुसलमानों ने इस तरफ ध्यान किया कि हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं लाइक जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, टर्की हो गया, सऊदी अरब हो गया, ईरान, पाकिस्तान, इन सब कंट्रीज़ से जब इस तरफ ध्यान देना शुरू किया कि मुल्क को डेवलप्ड होना चाहिए ताकि हमारा मुल्क भी हमारे मुस्लिम ममालिक भी एक अहम उनका भी एक नाम होना चाहिए दुनिया में। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या किया, ज़ाहिर है कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए कोई भी मशीन्स चलाने के लिए आपको ऑयल गैस इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब ये चीज़ें हमारे मुस्लिम ममालिक में निकलना शुरू हुई आना शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रीज़ भी शुरू हो गई। Malaysia is the most developed country and produce high-tech goods such as electronic equipment and electrical appliances for local use and export. मलेशिया कह रहे हैं कि मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है और प्रोड्यूस करता है हाई टेक गुड्स सच एज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस फॉर लोकल यूज़ एंड एक्सपोर्ट। यानी उस जो मलेशिया है वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है अपने मुल्क में यूज़ करने के लिए भी और इसके अलावा वो एक्सपोर्ट भी करता है। However, compare the Malaysia with an area of 333,000 square kilometer, a population of 25.3 million in 2007, produced the same amount of industrial goods as Switzerland, which has an area of 44,000 square kilometer and a population of 7.3 million in 2007. The difference, of course, is that Switzerland has probably reached the peak of its output, while Malaysia and other Islamic countries have great scope for further development. अच्छा, मलेशिया जो है वो अप्लाइंसेस और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह बनाने में आगे भी है बहुत ज़्यादा और वो एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन मलेशिया जो है
ऑलमोस्ट उतने ही गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करता है जितने स्विट्ज़रलैंड में किए जाते हैं। The following chart shows the industrial output as GDP 2007 of the biggest non-Muslim industrialized nations and the leading Muslim ones. The industrial output of the remaining Islamic countries are too small to be included on this graph. Now I'm going to show, they are talking about the graph. It is on page number 26. Yes, you can see on page number 26, you can see the graph. The blue color, they are showing the non-Muslim countries and the green color is showing the Muslim countries. So आप देख सकते हैं ग्राफ में नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जो इन्होंने ग्राफ बनाया है वो कितनी ज़्यादा है और कहाँ तक पहुँची है, जबकि जो मुस्लिम कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा सऊदी अरबिया सबसे ऊपर है, फिर इंडोनेशिया, टर्की, ईरान, यूएई, अल्जीरिया, मलाइशिया, फिर ये सब नीचे आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनाने में है वो सबसे ज़्यादा कौन है, हमारे नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। Okay, now come to the next heading, Saudi Arabia. The industry here is mainly based on oil and petroleum products which are exported. Saudi Arabia is the world's largest exporter of oil. The government has invested a major part of its export earning in developmental projects for the country. Saudi Arabia also produces fertilizer, plastics, and simple mechanical and electrical goods besides its petrochemical and oil-based industrial products. सऊदी अरबिया जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस करता है ज़्यादातर ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विच आर एक्सपोर्टेड, जो ये ज़्यादातर एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा सऊदी इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल। जैसा कि आप सबको पता है ये बात कि सऊदी अरब जो है वो नंबर 1 पर है जो दुनिया को पेट्रोल सप्लाई करता है, जो दुनिया को पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से इस मुस्लिम कंट्री में अल्लाह ताला ने इसको ये इस नेमत से नवाजा है, ये इस ब्लेसिंग से नवाजा है कि इसके पास ऑयल जो है बहुत वाफिर मिकदार में मौजूद है और वो सारे जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ में, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में ये ऑयल एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से इसकी इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, मलेशिया. Apart from high-tech electronic equipment and appliances, Malaysia industries include food processing, chemicals and textile as well as pewter. Malaysia is a major producer and exporter of palm oil, rubber and mineral products such as tin and oil. The tourism industry in Malaysia is also quite successful. अच्छा, अब मलेशिया, जैसे कि मैंने आप लोगों को हमने पहले डिस्कस किया था कि मलेशिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और अप्लाइंसेस बनाने में एक अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स एज वेल एज प्यूटर. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्यूटर? बेसिकली प्यूटर जो है वो प्यूटर बेसिकली इज़ एन एलॉय ऑफ टिन एंड अदर प्रोडक्ट्स. ये टिन और दूसरी किस्म की केमिकल्स, दूसरे प्रोडक्ट्स वगैरह के साथ मिलकर बनता है। पहले के ज़माने में इसके बर्तन बना करते थे. नाउ आई एम गोइंग टू शो हाउ pewter look likes. See, you can see in the diagrams different types of products are produced from pewter. You can see pewter प्लेट है, इसके अलावा और ये शो पीस हैं कुछ इस तरह के बनाए हुए हैं. बेसिकली pewter जो है वो एक टिन और यू कैन से एक और प्रोडक्ट है उसके साथ मिलकर बनाया जाता है. ओके, तो मलेशिया जो है वो pewter और इसके अलावा रबर, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, ये सब भी बनाने में एक अहम किरदार अदा करता है. इसके अलावा ये एक्सपोर्ट भी बहुत करता है. इसके अलावा अगर देखा जाता है टूरिज़म इंडस्ट्रीज़ मलेशिया इज़ ऑल्सो क्वाइट सक्सेसफुल. यानी कि मलेशिया में टूरिज़म भी बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पे, यानी लोग टूरिज़म के लिए भी बहुत जाते हैं. वहाँ बहुत सारी जगह हैं जो बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं. मलेशिया हैज़ अ वेरी वेल डेवलप्ड telecommunication network as well as the roads and railway infrastructures and international seaports. ठीक है, यानी ये बता रहे हैं वो बहुत वेल डेवलप्ड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स भी वहाँ पर मौजूद है. इसके अलावा वहाँ की रोड्स, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड इंटरनेशनल सीपोर्ट्स वगैरह भी सब मौजूद हैं और बहुत सब वेल डेवलप्ड है. अच्छा, वन मोर थिंग, मुझे आपको ये बात बताना था कि मलेशिया
और मलाइशिया। मलाइशिया बेसिकली इंग्लिश में कहा जाता है और मलाइशिया कहा जाता है, मलाइशिया उर्दू में कहा जाता है और मलाइशिया इंग्लिश में कहा जाता है। जब इंग्लिश में अगर हम मलाइशिया लिखेंगे ना तो श की जो साउंड होती है वो एस एच के साथ आती है, जबकि यहाँ पे एस आई ए है, तो इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे मलाइशिया, इंडोनेशिया। ओके, और इंग्लिश में पढ़ेंगे मलाइशिया, इंडोनेशिया। ओके, और इसके अलावा यू कैन सर्च ऑन गूगल के हाउ वी कैन कॉल द वर्ड मलाइशिया और इंडोनेशिया. ओके, so now come to the next heading and next page. Indonesia. Like Malaysia, Indonesia also has an equatorial climate, and its main natural and agricultural products are rubber, coconuts, coffee, and rice. Indonesia has also developed as a strong industrial infrastructure based on its mineral products, oil and tin, and its agricultural and natural products, rubbers and timber. यानी इंडोनेशिया भी मलेशिया की तरह जो है वो अपनी चीज़ों के मामले, अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के मामले में काफ़ी मशहूर है, काफ़ी फेमस है। जैसे वहाँ का रबर, कोकोनट, कॉफ़ी, राइस, ये सब वहाँ के काफ़ी फेमस है जो वो एक्सपोर्ट करता है। ओके, इसके अलावा इट मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड अप्लाइंसेस फॉर लोकल यूज़ एंड एक्सपोर्ट। ये भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस और इक्विपमेंट प्रोड्यूस करता है लोकल यूज़ के लिए, फिर जो होता है इसके अलावा एक्सपोर्ट भी करता है। एंड देयर आर टेक्सटाइल, केमिकल्स एंड पेपर फैक्ट्रीज एज वेल एज shipyards in the main port cities. Tourism is also a successful industry in this region. इसके अलावा टूरिज़म भी वहाँ पर काफ़ी है इंडोनेशिया में, और ये सारी रबर हो गया, टिम्बर हो गया, ऑयल, टिन, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी वो एक्सपोर्ट करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट मुस्लिम कंट्री, दैट इज़ टर्की. As all you know about the Turkey locally grown cotton contributes to a large textiles and garments industry. Turkey also produce carpets for export. जैसे कि आप सबको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो अब पता चल जाएगा कि टर्की जो है वो अपने कारपेट्स वगैरह के एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। उसकी कारपेट वगैरह उधर बहुत अच्छे बनाए जाते हैं, मतलब टर्की के कारपेट्स दुनिया में मशहूर हैं। Turkey also produces carpets for export. Besides iron and steel, cement, oil refining, chemicals, and food processing are also important industries. Turkey is also a popular place for tourists because of its climate, its scenic landscapes, and history. जैसे कि आप लोग को पता है कि टूरिज़म के हवाले से टर्की काफ़ी फ़ेमस है। टर्की की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मशहूर है। आप लोग को पता भी होगा आजकल, जैसे आप लोग देख भी रहे हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की टर्की से कितनी अच्छी दोस्ती है, और पाकिस्तान में टर्की की चीज़ें काफ़ी फ़ेमस है। पाकिस्तान में क्या, खैर दुनिया भर में मशहूर है, अपनी हिस्ट्री के हवाले से वो दुनिया भर में मशहूर है। सल्तनत उस्मानिया, आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, ऑटोमन सल्तनत उस्मानिया को कहा जाता है। तो ये हम आगे अपनी किताबों में भी पढ़ते हैं कि सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल या सल्तनत उस्मानिया का उरूज कैसे हुआ, ज़वाल कैसे हुआ। ये इसके अलावा और भी आप लोग आजकल जो है वो सुन रहे होंगे कि टर्की में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मतलब किस तरह जो है वो अपने टूरिज़म के हवाले से काफ़ी फ़ेमस है। उसका शहर है इस्तांबुल, तो वो काफ़ी फ़ेमस है, लोग टूरिज़म के लिए वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, ईरान. Oil forms the main industry in Iran, which is the fifth largest producer of oil and has over 10% of the world oil reserve. Other than export of carpets and caviars from the Caspian Sea, Iran also produces textiles, petrochemicals, automotive goods, plastic goods, processed foods, tobacco and paper and cardboards. इसके अलावा ईरान जो है वो अच्छा, आप लोग को पता है ईरान में भी ऑयल जो है वो काफ़ी वाफिर मकदार में पाया जाता है, लेकिन कुछ यू कैन से के कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से ईरान से जो है वो ऑयल इतना एक्सपोर्ट ईरान नहीं कर पाता, यानी कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, इसी वजह से वहाँ पे बैन लगाया हुआ है कि ईरान जो है ऑयल का एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, उससे कोई ऑयल ख़रीद नहीं सकता।
खैर दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ईरान में भी ऑयल काफ़ी जो है वो मुस्लिम कंट्री में वो ईरान का भी एक अहम किरदार है, एक नाम है कि जहाँ पे ऑयल वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा वहाँ पे भी कारपेट्स वगैरह और दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती हैं जो वो एक्सपोर्ट करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, बट बिफोर स्टार्टेड द नेक्स्ट हेडिंग टूरिज़्म, you can see the diagrams. You can see the carpet, a carpet in traditional Ottoman pattern. You can see ये एक ट्रेडिशनल कारपेट है, एंड द अनदर वन डायग्राम इज कारपेट वेविंग इन ईरान। अच्छा, ईरान के भी कारपेट्स और जो गालीचे वगैरह जिस तरह बिछाए जाते हैं सेंटर ऑफ द रूम, वो काफ़ी फेमस हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट इज़ प्यूटर इंडस्ट्री इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में प्यूटर इंडस्ट्री है। यू कैन सी फ्लास्क, ये जो फ्लास्क पड़े हुए हैं ये सब मेड अप ऑफ प्यूटर के बने हुए हैं। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन यू रेस्ट ऑफ द हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर ऑन माई नेक्स्ट वीडियो।